اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ چکن ہے اس میں، اور اس میں سبزی ہے، ٹماٹر ہیں اور تھوم ہے، لہسن، دھنیا ہے، ساوی مرچ ہے، یہ بھی ان فیملی کو دینی ہے جن تک یہ راشن پہنچانا ہے۔ ہاتھ کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح میں نے اپنے پورے جسم کو ڈھک کے رکھا ہوا ہے تاکہ ٹھنڈ نہ لگے۔ تو یہ دوائی ہے جی، یہ سیرپ ہیں، اور یہ بھی ایک یتیم بچہ ہے اس تک پہنچانے ہیں۔ یہ میری بہت ہی پیاری باجی آپ رہتی UK میں، ان کی طرف سے دی گئی ہے دوائی، یہ بھی ان تک پہنچانی ہے، اس بچے تک جس کو تکلیف ہے، تو وہ استعمال کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ شفا دے گا انشاءاللہ۔ یہ راشن جو ہے نا ماشاء اللہ اندازے کے مطابق یہ 1.5-2 مہینہ اس فیملی کے لیے کافی ہوگا، اتنی زیادہ راشن ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ جب بھی میں سفر پہ جاتا ہوں سب سے پہلے جو ہے نا وہ اماں کی دعا لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر سفر کے لیے روانہ ہوں گے۔ اماں دعا کر دیں اپنی بیٹی کے لیے جنہوں نے غریبوں کے لیے راشن دیا ہے، تاکہ ہم پھر دعا بھی کر دیں، اجازت بھی دیں اور ہم جائیں۔ اللہ میری دھی کو بہو دے، اللہ ان دے بچے دی زندگی کرے، اللہ بھاویں دے بھیڑ بھراویں دی دے گھر والے دی بڑی زندگی ہوونے، کوئی دکھ مصیبت نہ آونے، اللہ راضی ہوونے، اے غریبیں کتے اتنی ایک تاون کرنن، اللہ انہیں دا دیتا منظور کرے، اللہ راضی ہوونے، ہر مسلمان دی خیر ہوے، اللہ بھاویں سکھ صحت ہوونے، کوئی دکھ مصیبت نہ آونے، اللہ انہیں دے بچے دی بڑی زندگی کرے، اللہ بھاویں جو انہیں جا دل جا مرادان سن، اللہ انہیں جا پورا کرے، خیر نال میرا پتر ونجو تے خیر نال آبو، اللہ بھاویں۔ تو اپنی بہت ہی پیاری باجی، میری جتنی باجی ان سب کے لیے، میری ماؤں کے لیے ہمیشہ دعائیں رہتی ہیں، اور میری باجی جو ہے نا جمیلہ کوثر میری بہت پیاری آپ ہی، آپ اکثر تکلیف کے ساتھ رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے، آپ کی جو بھی تکلیفیں اللہ تعالیٰ تکلیفیں دور کرے، آپ کے کاروبار میں، رزق میں، اولاد میں، صحت میں، علم میں، جان و مال میں اللہ تعالیٰ برکت رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ میری باجی کو اور زیادہ عطا فرمائے، جس نے غریبوں کے بارے میں سوچا ہے۔ ہم جیسے جتنے بھی غریب ہیں اس وقت بہت پریشان ہیں، جہاں تک یہ راشن پہنچے گا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنی میری بہنیں، میری باجیاں گھر میں، ہسپتال میں جہاں بھی بیمار ہیں، لا علاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو شفا کاملہ اجر عطا فرمائے، اور آج اس جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور کرے۔ اللہ تعالیٰ میری باجی بہت پیاری باجی جمیلہ کوثر، اللہ پاک اس کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، ان کے کاروبار میں دن دگنا رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ میری باجی کو اس کی عمر دراز فرمائے، جتنا اس نے غریبوں کے لیے دے اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت نصیب فرمائے، ان کے صحت میں برکت نصیب فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ میری باجی کی عمر دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ میری باجی کے بچوں کی عمر دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے، ان کی تمام تکلیفیں دور فرمائے، دشمن کے شر سے، شیطان کے شر سے، ہر مضی امراض کے شر سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں دن دگنا رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، جتنا وہ غریبوں کے لیے بھجواتے ہیں اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا دیا یہ قیمتی سرمایہ جو کہ محنت سے کمایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرفیت قبولیت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور رحیم ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، یا اللہ جو اس دنیا فانی سے مسلمان رخصت ہو گئے ان کی بے حساب کتاب بخشش فرما، ان کی قبروں کو حد نگاہ وسیع بنا، یا اللہ پاک ان کی قبروں کو منور فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ مسلمان کسی بھی دنیا کے کونے میں بیٹھے ہیں سب کی غیب سے مدد فرما، مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک امت مسلمہ کی خیر فرما، امت مسلمہ پہ راضی ہو جائے، یا اللہ پاک جو ہم سے جانے میں غلطیاں ہوئی ہیں ان پہ شرمندہ معافی چاہتے معافی عطا فرما، یا اللہ پاک ہم سب کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ پاک ہمیں صرف اپنے در کا محتاج رکھ اور کسی کے در کا محتاج نہ ہونے دے، یا اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمانا، مرتے وقت موت کی سختیوں سے محفوظ رکھنا، یا اللہ پاک جب قبر میں پہنچے تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مبارک نصیب فرمانا، یا اللہ پاک قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا، یا اللہ پاک منکر نکیر کے سوال جواب میں آسانی نصیب فرمانا، یا اللہ پاک محشر کے دن کے حساب کتاب سے یا اللہ پاک اس میں آسانی نصیب فرمانا، یا اللہ پاک جب کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ ہم پہ قیامت دائم فرمانا، یا اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی خیر فرما، یا اللہ پاک جو سفر میں چل رہے ہیں خیر وفیت ان کو ان کی منزل مقصودہ پہنچا دیں، یا اللہ پاک جو گھروں میں ہسپتال میں بیمار ہیں لا علاج ہیں سب کو صحت کاملہ اجر عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مصیبت میں ان کی مصیبتیں دور فرما، جو تنگی میں ہیں پریشانی میں ہیں قرض میں مبتلا ہیں تمام تکلیفیں پریشانیاں دور فرما، ہر مسلمان کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ پاک جتنا میری باجی نے دیا ہے انمول تحفہ غریبوں کے لیے، یا اللہ پاک اس نے کھانے کے لیے یہ بندوبست کیا ہے، جتنا بھی
गरीब है, मुस्तहिक हकदार हैं, जहाँ तक पहुँचता है या अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक मेरी बहुत ही प्यारी बाजी जमीला कौसर, उसको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह पाक तकलीफ़ के साथ मेरी बाजी रहती है, उसकी तमाम तकलीफ़ें दूर फरमा, उनके बच्चों की मदराज फरमा। या अल्लाह पाक उनका दिया ये कीमती सरमाया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा इजाज़त है, चलें? जी हाँ मेरा पुत्र वञो खैर नाल वञो ते खैर नाल आवो ते ध्यान करके, सर्दी बड़ी है। चलें जी, माशाल्लाह अम्मा की इजाज़त मिल गई है, चलें भाई चलें। ठीक है भाई, चल रहे हैं। माशाल्लाह। अब जी माशाल्लाह मैं दवाई लेके इस बच्चे तक पहुंच चुका हूं जो कि यतीम है। ये देखें जी, ये वो बच्चा है जिसके लिए बाजी ने जो है ना भिजवाई है दवाई। निकालें भाई, एक सिरप पहले निकालें ताकि इनको समझा देना कि किस तरह पिलाना है। ये देखें बाजी, ये एक चम्मच सुबह एक शाम को पिलाना है, ये याद कर लें, ठीक है ना इसको। और ये जो है ना, ये सिरप मेरे ख्याल में इसको उल्टा करना यार, एक दस्ताने पहने हुए हैं। ये भी एक सुबह एक शाम पिलाना, ठीक है, ये ले। और ये जो है ना, ये एक चम्मच पिलाना है आपने सिर्फ रात को, जब इसको सुलाना है ना तब एक चम्मच पिलाना है इसको, ठीक है। इंशाल्लाह ताला इसका कान भी ठीक हो जाएगा और इसकी खांसी जो है ना वो भी ठीक हो जाएगी। अभी तक इसकी दवाई नहीं ली थी ना? कैंसर गिद्दी उडो सर्दी उडो काम नहीं थी ना कशा हाई तना सा गिद्दी ऐसे। चलें, अल्लाह ताला ने मदद की है। और जिस मेरी बाजी की तरफ से आपको राशन मिलता है उसकी तरफ से दवाई भी उन्होंने लेके दी है, तो उसके लिए दुआ कर। निके निके बाल बहुत दुआ करने कशा देंदी तो सारे बाल रोटी खा बने ना तो शायद भूखे हो तरसे उन कौन पूछदे यतीम बाल दुआ करने ऐसा लंबी जिंदगी होवे बाजी दी। चलो पियो कह नहीं जरे वाले ऐसा अगले जान वैसो अल्लाह को आखसो अल्लाह से यहाँ बाजी ऐसा को राशन देंदी ऐसा अपने बाल पाले ऐसे बहुत दुआ करने। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपकी दुआएं और इन छोटे छोटे बच्चों की दुआएं अल्लाह ताला मेरी बाजी के उनके बच्चों के हक में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। बस ऐसे दुआ करनी है, छोटे बच्चे अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे। और दस्ताने देखे पहने हुए, ठंड इतनी है कि बंदा हल भी नहीं सकता। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे और जो इनका मुकद्दर है नसीब है अल्लाह ताला पहुँचा रहा है, ये खा रहे हैं, बस इसी तरह इंशाल्लाह अल्लाह ताला हीले वसीले बनाता रहेगा और ये जो है ना खाते रहेंगे। समदाना आइशा दा दर्द कर लो यकदम कान को पिटे ने होने डिठे यका खून कढी वदे सर्दी कलो काम नहीं थींदा, कान बहुत खराब हो गए। बस दवाई इसको पिलाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सेहत देगा, ठीक है इंशाल्लाह। खुश है ना? माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये जी वो जगह है जहाँ पे काम वगैरह किया जाता है। और ये देखे सामने जी भट्ठा बंद है और इधर जी मिल लगी हुई है जहाँ पे हम बच्चे को दवाई देने के लिए आए थे। तो मैंने कहा अपने प्यारे बहन भाइयों की सूरत हाल दिखा दूँ। मेरा भाई है आमिर और इसको हम साथ लेके आ रहे थे। ये इसने कहा कि मैं रज़ाई ओढ़ूंगा, तो ये रज़ाई साथ में लेके आए हैं। और भाई जो है ना वो लुकार पहनी हुई है और इसने रज़ाई। भाई आप ऐसा करें, इसके साथ छुप जाए वरना ठंड लग जाएगी। तो आप इसके साथ छुप जाए, आपको ठंड लग जाएगी। जो सर्दी का कहर बड़ी सर्दी में लगता है जिवें बंदे को बर्फ वाली जात सट करते ना हुन यो हालात सारे ना तिया बैठे। ऐसा लगता है बंदा बचेगा भी नहीं। बस रात दी रात की तो जो टुरे वते पर रात का काम है, चलो नेकी वाला काम, चाहे गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, लेकिन हमने चलना है इंशाल्लाह। जब तक जिंदगी है तो हम चलते रहेंगे इंशाल्लाह। चलें भाई, सफर काफी ज्यादा है लेकिन हमने जाना। फिर ये भी ना हो ना कि बारिश शुरू ना हो। बारिश शुरू थी कर भाई ते टुंडरे। हाँ, ये देखिए बादल की सूरत हाल देखें, हर तरफ गहरे बादल हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो फिर ज्यादा जो है ना मसला मसाइल हो जाएगा। चले चल के उनकी अमानत पहुँचाते फिर इंशाल्लाह घर चलते हैं। सामने देखें जी वो भट्ठा मौजूद है और हम पहुँच चुके हैं इस मांझी के पास जिसकी अमानत हमारे पास मौजूद है। और इंशाल्लाह ताला ये राशन निकाल के आपको दिखाते हैं, सेटिंग करके फिर इंशाल्लाह बाजी के लिए दुआ भी अम्मी जान से अम्मा से दुआ भी कराते हैं और इनकी अमानत इनके हवाले करते हैं। अब जी मैं आपको दिखाता हूँ, सारी सेटिंग हमने करके रख ली है। राशन जो है ना आपके सामने मौजूद है, सारी ज़रूरियात की चीज़ें जो है ना इसमें मौजूद हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लें। सिवैयाँ भी लेके आया हूँ, ये देखें 4 किलो घी भी है, ये बर्तनों वाला साबुन भी है, नमक भी है, 2 किलो चावल भी हैं, 3 किलो और दालें भी हैं, ये सर्फ भी है, तेल भी है और ये पाउडर जो है ना धनियों का ये भी साथ में है, 1 किलो मिर्च भी है। और ये देखें ये 1 किलो मेरे ख्याल में आधा किलो ये है, चाय भी है। और ये चीनी जो है ना 5 किलो चीनी है, दालें भी हैं सारी, माचिस भी है और 4 थैले जो है ना आटे के हैं। और ये जो है ना इसमें चिकन भी है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है मिसाला जात है, ये भी उस माजी के हवाले करते हैं जिनकी ये अमानत है। और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी कौसर, मेरी बहुत ही प्यारी बाजी जमीला कौसर, उसकी तरफ से जो है ना ये राशन जो है ना इस गरीब फैमिली को दिया गया है। और माँ जी जो है ना वो अंदर बेचारी चाय बनाने लग गई है। उन्होंने कहा बेटा आप सफ़र करके हैं, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो वो कहती है कि मैं चाय बना लूँ, आप चाय पी के ही मेरे घर से जाना। तो मैंने कहा चले माँ जी आप जब तक चाय बना लें तब तक हम जो है ना ये दिखा देते हैं अपनी बाजी को और अपनी प्यारी बाजियों को, माओं को।
और देखने वाले बहन भाइयों को कि ये अल्लाह की मदद है, और जो भी गरीबों के साथ मुस्तहिक लोगों के साथ तावन करता है, हेल्प करता है, अल्लाह ताला दुगना चुगना करके अता फरमाता है। क्योंकि इस वक्त भट्ठे की सूरत हाल जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, भट्ठे बंद हैं, कारोबार नहीं हो रहे, और ये फैमिलियाँ बहुत परेशान हैं। चलें, इनकी मदद हो गई है, हेल्प हो गई है, इनका एक महीना अच्छे से, मेरे ख्याल में अंदाज़ा एक महीना अच्छा गुजरेगा। चलें, जब तक ये खाना बना के खाते रहेंगे। माँ जी है, वो बाजी है जिसका ऑपरेशन हुआ है, वो अंदर है, मैं भी वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये देखें, ये भाई है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। जब तक ये पका के खाते रहेंगे तो बाजी के लिए, उनके बच्चों के लिए ढेर सारी दुआएं करते रहेंगे, और अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अब जी मैं आपको दिखा देता हूँ वो हमारी बहन जो जिसका ऑपरेशन हुआ है। ये देखें, ये चारपाई पे मौजूद है बेचारी, अल्लाह ताला इसको सेहत अता फरमाए। और ये जिसके घर वाला है, ये इसके बच्चे 3 बच्चे हैं ना भाई? 4, एक छोटा। हाँ, एक छोटा। वो बेटा है बेटी है? बेटी है। हाँ। चलें जी, अल्लाह ताला रहमत अता की है, अल्लाह ताला ने लंबी ज़िंदगी दे। और ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है ना बाजी जो है ना अंदर सोई हुई है, अल्लाह ताला इसको सेहत अता फरमाए। और अम्मा जी कहाँ है? ऊपरले कमरे च। अच्छा, वो दूसरे कमरे में। चलें जी, अम्मा को बुलाते हैं। ये देखें जी, अम्मा जी यहाँ पे चाय बना रही है हमारे लिए। ये देखें अम्मा, कितना देर में बन जाएगी? ये होने बन जाती है अम्मा दी हुणे बन वैसी, क्योंकि लकड़ी जो है ये सिन्या होनी ना, लकड़ी वास्ते मसले बन लकड़ियां गए। भी है नहीं पता। अम्मा जेड़े तक जब तक चाय बनती है ना, तुसा आओ अपनी जेरी अमानत है भेन की नो, तो बाजी वास्ते अपनी बेटी वास्ते दुआ भी कर दो, वो तो बाद इंशाल्लाह वल चाय पीनी है। अम्मा को मैंने यहाँ पे बिठा दिया है। सबसे पहले ये चिकन जो है ना, ये मिसाला ये ले अम्मा, ये सबसे पहले ये आप अपनी अमानत संभालें। इसमें चिकन है अम्मा, और बाजी को जो है ना वो यखनी बना के, जो आप कह रही थी ना, वो बना के आपने उसको पिलानी है, ठीक है? बाकी ये सामान आपके सामने है, ये आपकी अमानत थी, आप तक पहुंचा दी है। हमारी बहुत ही प्यारी बाजी, आप रहती यूके में, जमीला कौसर, उसने आपके साथ तावन किया, अपनी बेटी के लिए ढेर सारी दुआ कर दें। अल्लाह अल्लाह मेरी तीन बहुत खुश रखे ते अल्लाह मनु मान देवे ते अल्लाह मेरे रास्ते जड़ा मेरा गुजारट हो रहा मैनू गरीबी नु गाड़ा लाया अल्लाह नु तो बहुत देवे ते अल्लाह ना हाई दी सब। हाँ अम्मा, वो बाजी जेड़ी है ना, वो तकलीफ अक्सर आंदी है, तो उनके वास्ते दुआ कर दो, अल्लाह ताला को सेहत अता फरमावे। अल्लाह अल्लाह उन्हें सुख देवे ते अल्लाह सेहत देवे, अल्लाह मेरी तीन मान देवे। आमीन आमीन। अम्मा खुश है ना? खुश है मेरा पुत्र, बहुत खुश है तेरे, जरा मामा खुश होने तो अल्लाह ताला खुश होने। अल्लाह ताला खुश है। अम्मा सारा ये सामान जो है पी अम्मा खुश है ना, तेरा ये निज़ाम अच्छा चल वैसी है? चल जा मेरा पुत्र बड़ा चल जा। हाँ, अल्लाह ताला दुआ करे बेटी की ते कि अल्लाह ताला उनको और ज्यादा अता करे, उन्हें कारोबार मां रिज़्क सेहत च इल्म में अल्लाह ताला बरकत रहमत नज़र अल्लाह उन्हें हज करावे तो अल्लाह तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह उन्हें और देवे, आमीन आमीन अल्लाह उन्हें और देवे जेड़ा सानू गरीबां नु गाड़ा लाई। आमीन अम्मा आमीन। अल्लाह ताला कबूल फरमाए जी माँ जी की दुआ। और भाई आपने भी दुआ करनी है। अल्लाह उन्हें बहुत देवे, मेरे बच्चों के बारे सोचा अल्लाह उन्हें इन्ना टेर देवे, उनकी तौफीक अल्लाह देवे, बहुत देवे अल्लाह उन्हें, अल्लाह उन्हें हज करावे, अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती देवे, उनकी औलाद नु भी उन्होंने भी सारे नु मेरा मालिक सारी कबूल करे गरीबन। आमीन, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। बेटा तुझसे भी दुआ करनी है? हां निके निके माशाल्लाह। बेटा तू भी दुआ करनी है, ठीक है? अपनी फूफी वास्ते दुआ करनी है, ठीक है? फूफी वास्ते दुआ करनी है। अच्छा हाँ देखा, वो राशन तौरी कितने भेजे वाले उनके वास्ते दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनको ज्यादा अता करे, ताकि इसी तरह वो जो है ना गरीब नाल तावन करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। सामने देखे वो भट्ठा मौजूद है, और मैं पहुंचा हूं अब इस माँ जी के पास, जिसके हालात जो है ना बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब हैं, और ये फरियाद कर रही है कि मेरे पास राशन बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये माँ जी जो है ना कहने लगी कि बेटा हमारा एक क्लिप बना दो, हम बहुत परेशान हैं, कारोबार नहीं हो रहे, और हमारे लिए बहुत मसला बना हुआ है। अल्लाह की रज़ा की खातिर हो सकता है कोई हमारे साथ, हमारी बेटी या हमारा कोई बेटा या हमारा कोई भाई हमारे साथ ताउन कर दे, तो हमारी इस वक्त बहुत परेशानी बनी हुई है। बाकी परेशानी है भी सही, क्योंकि ठंड इतनी है, काम की सूरत हाल बिल्कुल ख़राब है, काम बिल्कुल नहीं लग रहे, भट्ठे बंद हो गए, काम बंद हो गए। अब ये बेचारे जो है ना गरीब लोग बहुत परेशान हो गए, और कोई भी नहीं देता, कोई भी 1 रुपया दे के राज़ी नहीं है, और ये बेचारे अल्लाह की आस उम्मीद पे बैठे हैं, या आप जितने देने वाले बहन भाई हैं उनकी आस पे बैठे हैं कि कोई अल्लाह का नेक बंदा है हमारे साथ ताउन करे, और हमारी इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ सपोर्ट करे। तो बाकी सूरत हाल माँ जी बताएं कैसे गुजारा हो रहा है? बड़ा औखा गुजारा हो रहा है बेटे, अल्लाह तो बहु देवे, मैं कोई इतने अंदाज कर दे तो मैं तो वास्ते दुआ मंगसा तो अल्लाह आज मंजूर करे। मैं बेवहां बच्चे मैं कितने वजा, मैं ना कि वजन दिया ना मैं आवन दियाँ। मेरे तो एहसान करो, चाहे मेरी बेटी भी बीमार है, उन्हें तो भी लेंदी पई पेन, तू मैं कहीं को मैं मुँह मारा तो कोई भी नहीं देंदा। मैं अज दुआ आखे मैं के बेटे को मैं के मेरे पुत्र मेरे नाल कोई इमदाद करा, चा अल्लाह तरसी करके मैं हाथ बद्दी बैठी हूँ। अल्लाह तो को बहु देवे, अल्लाह तो को हज करावे, अल्लाह तो को तौफीक देवे गरीब बंदे देवन वास्ते। तो मैं ये आदि हाँ जब मैं कोई शहादत दे सोचा तो मेरे बच्ची का इलाज करे तो मैं आप ही दुखी रह बैनी हाँ।
अच्छा मैं ये तुम्हारी बेटी है भाई? जी आई बेटी है। बेटा कितने हैं तो जमा? बेटी मेरी 4 हैं। 4 हैं। शादीशुदा है? दो एक शादीशुदा है भैया, एक नवे समझो तलाकशुदा है। अच्छा ते ए बेटी जरी है ना, ए ओ मेरी जरी वड्डी नहीं वदी कौसर, ए उंदी बेटी है। ते रांती ते सा मेरे कोल ही है, ते यकदम जम्मी पली मेरे कोल है। अच्छा ऊ को मनी सदे ऊ को बाजी करके सदी है। बस दुखों च पे हैं थे। घर दा समझो कई वेले तो होंदी तो पका बना, कई वेले नहीं होंदी तो नहीं, काम कारोबार चलता है। अच्छा मां ए में समझ चा एक तू ते 4 बच्चे तेरे नाल 5 जी घर देवे जी हाँ। ते कम बंद पे तोरे तो वैसे कमाने वाला कोई के कोई नहीं। क्योंकि तू तो बेवा है ना। जी हाँ बेवा। हाँ तो बट्टे दी सूरत हाल बहुत खराब है मां। जी हाँ बड़ी खराब है। कई मेले खर्चा मिलते, कई मेले काम थी वे तो देने, ना थी वे तो नहीं देते। आज सारे घर में समझो ना कोई घे हो तो ना कुछ सौते हैं, बस चुप करके बैठे हैं थे। अल्लाह अकबर या अल्लाह तू ही अल्लाह उन्हें को बहु देवे, अल्लाह इतना तौफीक देवने गरीबां दे दर हक, अल्लाह उन्हें को बहु देवे, बहु इमदाद करे ना सही नहीं आते भी नहीं करेंदे। अल्लाह उन्हें को तौफीक देवे, अल्लाह उन्हें को हज करावे, उन्हें दा हज मंजूर थी वने। आमीन। ते मेरे वास्ते भी दुआ करन चाहे, एहसान करन चाहे, उन्हें दा मेहरबानी होसी। अच्छा मैं परेशान न थे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला मदद करना इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला के सामने हमने आपकी फरियाद अर्ज रख दी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर मदद करेगा आपकी। आमीन। अल्लाह तो उन्हें को तौफीक इतनी देवे जो अल्लाह बहु देवने, आमीन। उन्हें तो फैलो अल्लाह साढ़े ते भी रहम की दी रखें। आमीन आमीन। अम्मा अगर मदद अल्लाह ताला कर देवे तो वल दुआ करे से। हाँ दुआ करे, होनी करें दी बैठियां बाती करे सा दुआ उन्हें कीते। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला जरूर मदद करे से इंशाल्लाह। अब जी मैं पहुंच गया हूँ इस बाबा जी के पास जो कि निहायत ही हकदार मुस्तहिक हैं, और मौसम की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और ठंड ने जो है ना परेशान किया हुआ है, और जो भट्ठा मज़दूर फैमिलियाँ हैं उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और मैं आपको पता है राशन देने के लिए यहाँ पे आया था, तो ये भी बाबा जी जो है ना निहायत ही हकदार हैं और कह रहे हैं कि बेटा काम नहीं होता ठंड की वजह से, एक तो काम नहीं होता, दूसरा ये है कि अगर 2 दिहाड़ियाँ 3 दिहाड़ियाँ लगती भी हैं तो ये होता है कि ठंड की वजह से मैं काम नहीं कर सकता, घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, परेशानी होती है, तो बहुत परेशान हूँ। मेरे साथ अल्लाह की रज़ा की खातिर तावन करें, हेल्प करें, आप मेरा क्लिप बना दें, हो सकता है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा, मेरी कोई बेटी, मेरी बाजी मेरे साथ तावन कर दे। और ये भी जो है ना बाजी साथ में, ये भी इसके साथ होती है, और ये जो है ना ये क्या लगती है बाबा जी आपकी? ये मेरी धी लगती है। अच्छा ये आपकी बेटी है, बहुत ही परेशान है, और ये बाजी रो भी रही है और परेशान भी है। तो बाकी सूरत हाल बताएं बाबा जी। अल्लाह तुहाडे भला करे, अल्लाह कारोबार ठाडे भाईजान नहीं सारे को नहीं हो सकता, गरीब आदमी है दे ठाडे लोग असां ठेकेदार हैं, सब कर्जदार हैं दे 1.5 लाख रुपया है मेरा सेट ते, मेरे को नहीं होंदा तो मैं हुन बेवस थिया बैठा। अच्छा 1.5 लाख रुपया तू बाबा जी देने बटे देने दिया ते देना बटे ते ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚ ਵੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਠੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬਈ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਤਬਾ ਦੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अल्लाह उन्हें को हज करवावे, अल्लाह उन्हें को नेक करे, अल्लाह उन्हें बच्चे को नेक करे, देवन वाले को नेक करेगा, टूरे वाले उन्हें को नेक अच्छा करे। हुन तो से ये दसो बाबा जी तुम्हारी परेशानी क्या है भाई? ये परेशानी है ना घर दे जो सौदा ना पूरा होंदा ते ना सारे ये कर्जा पूरा लांदा, मैं क्या करावा। अच्छा घर दे विच राशन कोई नहीं? कोई राशन नहीं, उका कहे नहीं, मैं हाँ भी परेशान हूं। कारोबार कहे नहीं, पिछले हफ्ते फौत की नाल हुई है, उठा के रह गए, कारोबार नहीं ठाठ दी वजह तो नहीं होता पिया, मैं परेशान हाथ और अल्लाह बच्चा नहीं है मेरा, गया मैं उनको आखा हाँ भी मेरा बच्चे काटे आन, मेहरबानी थी सी साडे मेरी यही का बच्ची है, बेटा कोई नहीं? कोई नहीं बेटा कोई नहीं। अच्छा जी अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे, अल्लाह मंजूर कर दे, अल्लाह ताला अल्लाह करे केड़ा टोस के आया व तो उन्ना अल्लाह उन्हें कोई दे, अल्लाह तुम्हारे भी तरफ अल्लाह ताको हज करवावे, नेक करे, अल्लाह ताको इन्ने कलमां दे नसीब होवे, अल्लाह पर दुख दूर करे चा ते उन्हें दे पारो सारे भी कोई हल कर दे सन तो बड़ी मेहरबानी होसी तोड़े, अल्लाह तुहानू बहु दे सी, असा ते ये गरीब दुआ कर सकदे तोड़े हक च अपने। अच्छा बाजी परेशान हो, इंशाल्लाह ताला मदद अल्लाह ताला करने वाला है, इंशाल्लाह ताला आपकी अर्ज हमने अल्लाह ताला के सामने रख दी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर मदद करेगा, ठीक है? अल्लाह उन्ना दे भला परेशान नहीं भाई, परेशान तो आप ही थी ने कोई शय ना होवे बंदे दे घर, ना कोई शय खावण दा ना पीवण दा, उन्ना से क्या कर सकदे भाई जान। अच्छा अल्लाह ताला मदद करे सी। सामने देखें जी वो भट्ठा मौजूद है और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ इस मांझे के पास,
اور یہ اس کا بیٹا ہے، بٹھے پہ کام کرتا ہے یہ بیچارہ، اور اپنی ماں کا علاج بھی کروا رہا ہے، لیکن اب یہ پریشان ہے، کہتا ہے بٹھے بند ہو گئے ہیں، کاروبار بالکل نہیں لگ رہے، میں بہت پریشان ہوں، جو میرے پاس تھا میں نے اپنی ماں پہ لگا دیا ہے، اب یہ صورتحال ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں، وہ پریشانی الگ سے ہے، اور ماں کے لیے علاج کے لیے پیسے ضرورت ہے، وہ پریشانی الگ سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر بندہ چھوٹے چھوٹے بچوں والا ہے، اور پریشانی اب یہ بن گئی ہے کہ موسم کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف جو ہے نا بادل ہی بادل ہیں، اور ہلکی ملکی بارش بھی جاری ہے، تو غریبوں کے لیے بہت اس وقت مسئلہ مسائل بن گیا ہے۔ اور یہ ماں جو ہے نا اس وقت بہت تکلیف میں بیچاری، یہ میں آپ کو دکھا دوں، اس وقت جو ہے نا اس کا علاج بھی چل رہا ہے، اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اس کا علاج ہو رہا ہے، لیکن اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی ماں کا علاج کرا سکوں۔ تو کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ ماں جی کا علاج بھی چلتا رہے، اور راشن کی بھی یہ اپیل کر رہا ہے کہ میرے گھر میں راشن بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے بہت پریشانی بنی ہوئی ہے۔ میں نے مجبوری کے تحت جو ہے نا ماں جی کو باہر بٹھایا ہے، اندر دیکھ سکتے ہیں دھواں ہے، اور اندر جو ہے نا بندے سے کھڑا نہیں ہو سکتا بندہ، تو اس نے گود میں اٹھا کے جو ہے نا باہر بٹھایا ہے، یہ بیچاری چل بھی نہیں سکتی، ایسی صورتحال ہے۔ تو کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ اس کے ساتھ تعاون کر دے، ماں کسی کی بھی ہو، ماں ہوتی ہے، تو اس وقت یہ بیچاری بہت پریشان ہے، اس کا بیٹا بہت پریشان ہے۔ بتائیں صورتحال بھائی جان۔ ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تھا ہم نے لگا دیا اس پہ۔ ہم کہتے ہیں کوئی اللہ کا بندہ ہے تو ہمیں بھی کچھ دے دے تاکہ آپ علاج کرا ہم علاج کرا سکیں۔ اس کا جو ہماری امی کا پاس ہے جو پورا یہ کام نہیں کرتا، جو ہمارے پہ ہوتا ہے ہم حاضر توفیق لگا دیتے ہیں، گھر میں کھانا بھی ہوتا ہے، کار موسم خراب ہے، بٹھے بند ہیں، کام نہیں چل رہا ہے، موسم بھی خراب ہے، پریشانی بہت ہے، بہت پریشانی ہے، اتنی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے بھی کیا کریں ہم۔ چلیں بھائی، پریشان ہوں انشاءاللہ تعالی، ماں جی کی صورتحال ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ، میری باجی، میری ماں جی، کوئی بھی اللہ کا نیک بندے ان کے ساتھ تعاون کر دے، اس ماں جی کے لیے کچھ جو ہے نا مالی امداد کر دیں، ساتھ میں راشن کی بھی ضرورت ہے، راشن کی آپ امداد کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نام کا دیا ضائع نہیں جاتا، بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی حصہ رکھ لیتا ہے، وہ آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ اس ماں جی کے ساتھ، اس بھائی کے ساتھ تعاون کرے، سپورٹ کریں، تاکہ اس ماں جی کا علاج بھی، کیونکہ سردی ہے اب بندے سے بولا بھی نہیں جا رہا، اس ماں جی کا علاج بھی ہوتا رہے، اور سیشن بھی آپ دے سکتے ہیں، جتنا ماں جی کے لیے اس بھائی کے لیے دیں گے اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کر کے آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ماں جی کو صحت عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے، ٹھیک ہے بھائی جان؟ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے اسی انشاءاللہ۔ اب جی میں پہنچ چکا ہوں گھر، اور میری باجی آسمہ گئی تھی ڈاکٹر کے پاس جہاں سے اس کا علاج وغیرہ چل رہا ہے، تو آج بھی دوائی لے کے آئی ہے، تو میں نے سوچا اپنی ماؤں کو، اپنی باجیوں کو دکھا دوں کہ یہ جو ہے نا اپنا علاج ساتھ ساتھ میں جو ہے نا ہم کروا رہے ہیں، جس طرح وہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے اس طرح جو ہے نا علاج کروانا، تاکہ الرجی وغیرہ پہلے ٹھیک ہو جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپریشن کا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہوگا، لیکن ابھی کہتے ہیں کیونکہ ٹھنڈ کی صورتحال بہت زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں اس موسم میں اگر آپریشن ہو تو پھر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، خون رک جاتا ہے کیونکہ ٹھنڈ اتنی ہے، تو یہ بھی ساتھ میں مسئلہ ہے۔ باقی دوائی بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہاں باجی کیا ڈرپ لگی ہے، انجیکشن لگا ہے؟ تو بھی ٹیکے بھی لگائے تھے اور 2 ڈرپیں بھی تارک بھی لگائی تھی۔ اچھا، رات کافی طبیعت خراب ہو گئی تھی، پٹھوں میں درد ہونے لگا، اتنی تیز بخار ہو گیا تھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں ایک تو بخار بھی آپ کو پرانا ہوا ہے، اور اوپر سے نا پٹھے آپ کے بہت کمزور ہیں، خون جو ہے نا رک جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ رپورٹ ہے، آج کی ڈیٹ ہے اس پہ، جی یہ دیکھیں، یہ پہلا مہینہ 9 تاریخ ہے آج، تاریخ بھی اتنی مجھے نہیں پتہ لگتا، پہلا مہینہ 9 تاریخ 2026 میرے خیال میں یہی ہے۔ یہ آج کی ہے کل کی ہے؟ آج کی ہے۔ آج کی ہے نا، پھر یہ آج کی ہی ڈیٹ ہوگی۔ ابھی لے کے آئی ہوں، تھوڑی دیر پہلے آئی ہوں میں۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ نیچے والی پرانی ہے، یہ بھی ساری نہیں ہے؟ نہیں، یہ پرانی ہے۔ اچھا، یہ پرانی، ہاں یہ پہلے کی ہے، یہ پھر لگوا کے آئی تھی۔ یہ میرے خیال میں یہ بھی پرانی ہے، ہاں یہ بھی پرانی ہے، ہاں یہ پہلی ہے، یہ پہلی ہے، یہ میرے خیال میں دوسری ہے، یہ پھر اس کے بعد جب گئی تھی یہ وہ ہے، اور یہ آج کی ہے۔ یہاں پہ بھی میڈیسن لکھی ہوئی ہیں میرے خیال میں، یہی ڈرپیں لگائی تھی جو آج لگی ہیں نا، ٹیکے وغیرہ تھے اور ڈرپیں۔ اچھا، یہ ڈرپیں اور تھیں جو انجیکشن لگے وہ بھی تھے؟ جی ہاں وہ بھی تھے۔ چلے جی، اللہ تعالیٰ صحت دے، انشاءاللہ تعالیٰ علاج اس طرح چلتا رہے گا، جس طرح ڈاکٹر کہیں گے اسی طرح سے انشاءاللہ علاج ہوتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا۔ وہ کہہ رہی ہے نا پیتے کے میں نا سوج بہت زیادہ تھی، ابھی جو ہے نا تھوڑی کم ہو گئی ہے، جب تک کرنا وہ بالکل سوج ختم نہیں ہوتی نا تب تک آپریشن نہیں کر سکتے، اور آپ کو کمزوری بھی بہت ہے، آپ کو پٹھے اتنی کمزور ہے نا، ایسے پوری کنڈ میں درد ہوتا تھا، پھر یہاں درد ہو جاتا تھا، وہ کہہ رہے کمزوری بہت ہے آپ کو۔ پھر 2 ڈرپیں بھی لگائی ہیں، 2 ٹیکے بھی لگائے ہیں، اور ساتھ میں دوائی بھی دی ہے، اس نے کہا یہ استعمال کریں، 10-12 دن کی دوائی ہے، یہ آپ کھائیں، پھر آپ چیک اپ کروانا، پھر آپ کو جو ہے نا ہفتے کی صورت بتائیں گے بھائی
क्या करना है, जिस ऑपरेशन तरह करें। डॉक्टर ने कहा है ना, तो बाजी आपने उसी तरह करना है। जी हाँ भाई, हाँ, इसलिए जिस तो तरह वो कह रहे हैं। जब की डेट देते हैं मैं उसी दिन जाती हूँ। हाँ, जैसे अपना- मेरे भाई बहनों ने मेरे साथ सपोर्ट किया, मेरे प्यारे बाजों ने, अंकल जी ने हमारे साथ सपोर्ट किया, और भी भाई बहन हैं जो हमारे साथ सपोर्ट करते हैं। उनकी वजह से आप जो है ना, मैं टाइम पर दवाई भी ले रही हूँ और अच्छे डॉक्टर से ले रही हूँ। बहुत ही अच्छी डॉक्टर है नाजिया कैंसर, जिससे मेरा इलाज हो रहा है। बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, उससे इलाज करूँ। अल्लाह पाक मेरे बहन बाजियों को हमेशा खुश रखे, और हमारे अंकल के भी जो मुश्किलात हैं अल्लाह पाक वो दूर करें, और मेरे बाजियों को भी अल्लाह पाक अपनी इज्जत अमान में रखे, और हमेशा वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। मैं रात दिन उनके लिए दुआएं करती हूँ, क्योंकि इतनी दूर बैठ के उन्होंने हमारे बारे में सोचा। कारोबार बंद है, यहाँ तो रोटी भी बहुत औखी है, और मैं अपना इलाज कहाँ से करती। यही मेरी बाजियों की और अंकल की मेहरबानी है, और हमारे प्यारे भाई बहनों की मेहरबानी से ही हमारा अच्छे से इलाज भी हो रहा है। और बहुत सारी फैमिलियाँ हैं जिनके लिए हमारे बाजियों ने राशन, बिस्तरे वगैरह पहुँचाए हैं, वो भी बेचारे बहुत दुआएं करते हैं। अल्लाह पाक हमारे बाजियों को हमेशा खुश रखे, अपनी इज्जत मान में रखे। इतनी दूर बैठ के हमारे लिए इतनी सोचते हैं। जैसे कारोबार के सूरत तो हम दिखा रहे हैं कि किस तरह इतनी ठंड बनी हुई है। बहुत, मैं डॉक्टर तो गई, इतनी मुझे सर्दी लगी हुई, इतनी वहाँ ये ड्रिप भी नहीं चल रही थी। सलमा बाजी साथ में बेचारी थी, ऐसे हाथ मलते रह गए, कपड़े वगैरह वलेटे, वो पता नहीं कौन सा वो हीटर कहते हैं, उन्होंने वो साथ में चलाया, फिर जाके ड्रिपें चली। बिल्कुल खून जो है ना जम गया था। बस यही है हमारे बाजियों की मेहरबानी है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने बाजियों का, अंकल जी का, सारे भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला उनका दिया कबूल फरमाए। आमीन। आमीन। ये देखिए शाम का वक्त हो गया है, और अभी तक कहीं जो है ना सूरज निकलने का कोई चांस नहीं लगा। सूरज गरूब होने को पहुंच गया, लेकिन बादल ने सुबह से इसको घेरा है, और अभी तक आज मेरे ख्याल में कोई चौथा पांचवा दिन है, लगातार सर्दी जो है ना अरूज पे जा रही है। अब जी मैं पहुंच आया हूँ घर, और अंदर आया हूँ तो तहरा को देखा। तहरा जो है ना प्याज वगैरह आलू वगैरह मेरे ख्याल में बना रही है सालन। तो भूख भी लग रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। ओए होए होए। आज ऐसे लग रहा था जैसे हम गए, हमें ऐसे लगता था कि आज बस आखिरी दिन है, बचेंगे भी नहीं, इतनी ठंड है। लेकिन ठंड तो रोजाना के बने, तो रोजाना ही इतनी ठंड है, बहुत ज्यादा है, और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। दिन जो नहीं निकल रहा है, इसी वजह से ठंड बढ़ती जा रही है। क्या करें। चलें जी, अल्लाह ताला के निज़ाम है, और मौसम की सूरत हाल अब ऐसी रहेगी, क्योंकि सर्दी किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं। जब ठंड नहीं होगी तो फिर सर्दी कौन कहेगा। जी हाँ। तो अल्लाह ताला हर मुसलमान को खुश रखे। और मेरी बहुत ही प्यारी आपी जमीला कौसर, आप रहती यूके में, उनकी तरफ से आज जो है ना ये इमदाद दी गई। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और तहरा बना लेगी रोटी, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जब तक खाना जो है ना पेट में नहीं जाएगा तब तक और ज़्यादा ठंड महसूस होती रहेगी। जैसे ही खाना जाएगा भी रो रहा है, कहता है कि जल्दी करो, मुझे भूख लगी है, रोटी दो। वर्त खड़ा है। चले बन जाएगी अब थोड़ी देर के बाद, पकने लग गई है, तैयार भी हो जाएगी। शाम का जी टाइम हो गया है, और आखिरी अमानत जो रह गई है वो तहरा की और मेरी है। मेरी बहुत ही प्यारी बाजी, आप रहती यूके में, जमीला कौसर, उनकी तरफ से जो है ना हमारे लिए दिए गए थे 7,000 रुपये। लेकिन 1,000 रुपये जो है ना वो लोडर के किराए चला गया है, क्योंकि वहाँ पे हम गए थे राशन देने के लिए, और 1,000 रुपया हमने वो लोडर वाले भाई को दिया है किराया। और अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मेरी बाजी का दिया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जितना उसने हमारे लिए गरीबों के लिए दिया है, अल्लाह ताला इससे दुगना चुगना करके उनको अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनका दिया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जिस तरह उन्होंने अपने कीमती सरमाए में से निकाल के, मेहनत की कमाई में से निकाल के दिया, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और मेरी बाजी तकलीफ़ के साथ रहती है, अल्लाह ताला उसको सेहत कामला अजला अता फरमाए, अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, उसकी तमाम तकलीफ़ों को दूर फरमाए, और उसकी तमाम तकलीफ़ें परेशानी अल्लाह ताला दूर करे। अल्लाह ताला उसके बच्चों की उम्र दराज फरमाए, अल्लाह ताला उनके कारोबार में, मारिज़्क़ में, सेहत में, इल्म में बरकत रहमत नाज़िल फरमाए। जितना उन्होंने हम जैसे गरीबों के लिए दिया, अल्लाह ताला दुगना चुगना करके उनको अता फरमाए। अल्लाह ताला उन पे राज़ी रहे, और उनका दिया एक एक रुपया अल्लाह ताला अपनी बारगाह में शर्फियत कबूलियत नसीब फरमाए। और जितना मेरी बाजियाँ हैं, जितनी मेरी माएँ हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह न करे उनके घर में कोई भी तकलीफ़ है या आने वाली, अल्लाह ताला दूर करे। अल्लाह ताला उनको हमेशा अपनी हिज़्ज़ो अमान में रखे। और जितना भी गरीबों के लिए कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उनके कारोबार में दिन दुगना रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए, उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए, ताकि इसी तरह वो गरीबों के लिए जैसे भिजवाते हैं, इमदादें करते हैं, अल्लाह ताला उनकी ये इमदादें अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है, और ये 6,000 रुपये ये लेते रहा। हमारी बहुत प्यारी आपी है जमीला कौसर, आप रहती यूके में, उन्होंने तावन किया है, सपोर्ट की है, अल्लाह ताला उनका दिया कबूल फरमाए। तो उनके लिए दुआ कर।
अल्लाह पाक हमारी बाजी की जो भी तकलीफ़ है अल्लाह पाक अपनी रहमत से दूर कर दे, क्योंकि अल्लाह पाक की रहमत के आगे तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक से दिल से दुआएं करते हैं, या अल्लाह पाक उसकी जो तकलीफ़ है तो दूर फरमा, या अल्लाह पाक उसे सुख सेहत वाली ज़िंदगी फरमा। जो इतनी नेक हैं अल्लाह तुम्हारे लिए, इतनी वो तुम्हारी खातिर इतनी कुछ करते हैं, गरीबों के लिए पैसे भिजवाते हैं, इमदादें भिजवाते हैं, खाने का बंदोबस्त करते हैं, कपड़ों का बंदोबस्त करते हैं, या अल्लाह पाक तो उनको भी शख्सियत अता फरमा। या अल्लाह पाक उसे जो भी तकलीफ़ है अपनी रहमत से दूर कर, उनके कारोबार में माह रिज़्क़ में बरकत रहमत नाज़िल फरमा, उनके बच्चों की लंबी ज़िंदगी कर। या अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश रख, और पूरे अहले इस्लाम को अल्लाह पाक शख्सियत अता फरमाए और हमेशा खुश रखे। अल्लाह पाक जो भी अल्लाह पाक अपनी नेमतों से इतनी अता करे कि उनके घर में रखने की जगह भी ना हो। या अल्लाह पाक इतनी अता कर बहुत ज़्यादा, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह ने के बाद माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह।